وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ، ویسے تو ماشاء اللہ سب اس میدان کے اندر ماہر فن ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے میدان میں ماہر ہے، ہر ایک کی صلاحیتیں نرالی ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ اچھا پڑھانے والے بھی اس مجمع میں موجود ہو، اور میرے سے زیادہ صلاحیت مند بھی اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ ہمارا ایک اپنا انداز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ہمارا بچوں کا انداز کیا ہے اور کس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ میں آپ کو ایک پڑھا کر دکھاتا ہوں۔ یہ تختی نمبر 25 ہے، حمزہ ساکنہ کا قاعدہ ہے یہ، کیونکہ بچے اکثر اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں پڑھنے میں۔ حمزہ ساکنہ کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، اور حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، بچے یہاں پر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور حمزہ کی جو الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ اس میں آتا ہے، وہ بچوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ بھئی حمزہ کبھی وہ کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، وہ کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، الگ الگ طرح سے حمزہ آتا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، ان کو بتائیں گے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، تاکہ بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ اور مضبوط بیٹھ جائے کہ حمزہ ان شکلوں میں پڑھانے کے لیے آتا ہے، پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اور حمزہ جو ہوتا ہے، ہم بچوں کو سب سے پہلے اس کی ایک شکل بنا کر دکھائیں گے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ بچے کیا بولتے ہیں؟ حمزہ ہے۔ کچھ بچے بولتے ہیں، کچھ نہیں بھی بولتے ہیں۔ پھر 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4-5 مرتبہ بچوں سے کہلوائیں، بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ پھر سب بچے ایک ساتھ بولتے ہیں، سب کے ذہن میں آ جاتی ہے بات، بھئی حمزہ ہے۔ پھر سب بچے ایک دم زور سے بولیں گے، یہ حمزہ ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے ذہن کے اندر حمزہ کی شکل کو بٹھائیں گے، بھئی حمزہ اس طرح کا ہوتا ہے، جس طرح با کی، تا کی شناخت کراتے ہیں، بچوں کو پہچان کراتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ با ہے، یہ تینوں بھی ایک شکل کے ہیں، لیکن پہچان کس چیز سے کرائیں گے؟ نقطے کے ذریعے سے اس کی پہچان ہم کراتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہیں، لیکن نقطہ اوپر نیچے آ تو حرف بن جاتے ہیں۔ وہ نیچے نقطہ آ گیا با بن گیا، اوپر 2 نقطے آ گئے تا بن گئے، اس کے اوپر 3 نقطے آ گئے تو سا بن گیا۔ تو اسی طرح حمزہ کی بھی بچوں کے سامنے مشق کرائیں، ان کو پہچان کرائیں، بیٹا یہ حمزہ ہے۔ سب کی سمجھ میں آ گئی بات؟ بچے بولتے ہیں استاد جی سب کی سمجھ میں آ گئی بات۔ کس کو سمجھ آیا؟ پھر بچے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ، تو بچے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کچھ بچے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں۔ پھر ان سے ہم کہیں گے بار بار، بیٹا جس کی سمجھ میں آیا ہاتھ اوپر کرو، سب بچے ہاتھ اوپر کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ۔ 2-4 بچے ایسے ہوتے ہیں 15-20 کی کلاس کے اندر جن کو سمجھ میں بہت دیر میں آتا ہے، وہ بچوں کو سب سے آگے رکھے، تاکہ وہ بچے پچھلے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ پڑھنے کی ان کو عادت بن جائے۔ اگر ان کو پیچھے کھڑا کریں گے، وہ پیچھے کھڑا کر پڑھیں گے نہیں، لیکن وہ پڑھنے بھی نہیں دیں گے کسی کو، خود بھی مستیاں کریں گے اور دوسروں کو بھی مستی کرنے دیں گے پھر وہ۔ تو اس لیے ایسے بچوں کو آگے رکھے، جو کم ذہن کے بچے ہیں، کل ذہن بچے ہیں، ایسے بچوں کو آگے رکھے، قریب رکھے، ان پر نظر رکھے، یہ بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ پھر دیکھے بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا، بچوں کی تعریف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بچوں کی
जिस तरह बड़ा आदमी इंसान तारीफ का भूखा होता है ना, बच्चे भी थोड़े से उसके ख्वाहिशमंद होते हैं कि कोई हमें माशाअल्लाह कहे, कोई हमारी वाह वाह कहे, तो बच्चों का सीना बड़ा होता है, और सीना बड़ा हुआ तो बच्चे और उसको अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर अब हमने हमजा पढ़ाया, हमजा बता दिया। अब इसके बाद हम कहेंगे बेटा ये क्या है, एक आता है इसमें ये, तो सब बच्चे, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि ये दाल है। क्या बोलेंगे बच्चे? दाल है, और है भी दाल ही है। क्या है ये? दाल ही है। लेकिन बच्चों को पहचान कराने के लिए हम नीचे एक लकीर मार देंगे और उसके नीचे लिखेंगे छोटी सी दाल। फिर हम बच्चों से कहेंगे बेटा ऊपर क्या है? दाल। नीचे क्या है? अब जो बच्चे दिखने में जैसा है तो बच्चे कहेंगे ये भी दाल है। बेटा ये दाल नहीं है, इसी का नाम जज्म है, इसका नाम जज्म है। इसके 3 नाम है बेटा। कितने नाम है इसके? 3 नाम है। बच्चों को याद कराएं, साकिन, सुकून, जज्म। जिस हर्फ पर यह आता है उसको साकिन वाला हर्फ बोलते हैं, जज्म वाले हर्फ को साकिन वाला हर्फ बोलते हैं। बेटा जब ये इसको यहां से उठाएंगे और यहां पर लगाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो अक्सर बच्चे बोलेंगे हमजा बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हमजाए साकिना, इसको क्या बोलेंगे? हमजाए साकिना, है ना। बच्चे एकदम नहीं बोलते, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जहन के अंदर बात आती, तो बच्चे क्या बोलेंगे? हमजाए साकिना। फिर बच्चों के जहन में बिठाए कि बेटा हमजा साकिना जो है कभी अलिफ के ऊपर लिखा जाता है, कभी या के ऊपर लिखा जाता है, और कभी वाव के ऊपर लिखा जाता है। किसके ऊपर आता है? अब इसकी मिसालें हैं नीचे। और इनके अलावा जो है ये हमजा साकिना हर्फ के दरमियान में भी आता है, हर्फ के दरमियान में भी आता है। तो उसकी मिसाल लिख कर देंगे फिर बच्चों के सामने। क्या है ये? वअमुर। क्या है बेटा ये? अब बच्चों को पूछेंगे बेटा इसमें हमजा साकिना कौन सा है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। बच्चों अलग अलग मालूम करेंगे। तो बच्चे बताएंगे, कभी ये देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, फिर वो देखकर क्या करेंगे? ये हमजाए साकिना है। बच्चे क्या कहेंगे? ये हमजाए साकिना है। बेटा इसको कैसा पढ़ते हैं? बेटा इसको कैसा पढ़ेंगे? अब बच्चों को मालूम नहीं है, तो फिर अपन बताएंगे कि हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। क्या होता है? हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। वह मुर, इतना भी हिलना नहीं कि खुद ही हिल जाए, थोड़ा सा झटका देना है नॉर्मल सा। कैसा करेंगे? वह मुर। क्या करेंगे? अब इसको अच्छा बेटा जो हमजा के नीचे जो शक्ल लिखी है अलिफ की, ये पढ़ने में नहीं आएगी। वाओ हमजा ज़बर व मीम रा पेश मुर, व मुर। क्या पढ़ेंगे इसको? ये शक्ल लिखने में आई तो इसको पढ़ना नहीं, इसको छोड़ देना है। अभी जैसा आप हरूफ कमरी में, हरूफ शमसी में पढ़ते हैं कि हरूफ कमरी के अंदर अलिफ को छोड़ देते हैं और लाम को पढ़ते हैं, इसी तरीके पर हमजा के नीचे जो अलिफ है, वाव है, या है, इनको छोड़ेंगे। जो हमजा की जो शक्ल है ऊपर, उसको मिलाकर पढ़ेंगे पहले हर्फ से। अब इसी तरह दूसरा है, ये हर्फ के दरमियान में आ गया। अब इसी तरह है ये क्या है बेटा? इकरा पढ़ते बच्चे, इसको अक्सर पढ़ने में गलतियां क्या होती? वो समझते हैं हरूफ मद्दा है। क्या समझते हैं? अलिफ भी है, फिर इसके आगे हमजा है, तो क्या समझते हैं कि हम ये हरूफ मद्दा है। हरूफ मद्दा बेटा नहीं, ये हमजा साकिना है। इसके पढ़ने में क्या करेंगे? हम झटका देंगे। बच्चों को 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट कराएंगे, बार 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 दोहराएंगे, खुद भी पढ़ेंगे साथ में उनके। क्या करेंगे? ताकि बच्चे
जबान के अंदर वो अल्फाज इतना आ जाए कि बच्चा उसको आसानी के साथ में अदा कर दे। इक़रा, 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 बार बार पढ़ाएंगे। हमजा क़ाफ ज़ेर, इक़, रा हमजा ज़बर, रा, क्या बना बेटा? इक़रा। फिर पूछेंगे सबको, फिर पढ़ो, बोलो बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला आपने। इसको याद रखना भी, भूलना नहीं है। बच्चों को बच्चों के अंदाज में ही, बच्चों को बच्चों के अंदाज में ही, ताकि बच्चे हमारे से दूर ना हो, बच्चे करीब रहें और बच्चे बार बार खुद से होकर बोले उस्ताद जी फिर से पढ़ाओ, फिर से बोलो। बच्चों से ऐसी उनसियत और ऐसा दिल लगाना है कि बच्चे हमारे से दूर ना हो। इक़रा, क्या बोलेंगे बेटा इसको? इक़रा, बार बार उसको बोलेंगे। ये इसकी मिसालें हैं कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में क्या होता है बेटा? फिर से दोहराएंगे उसको। बोले बेटा ये क्या है? जज्म है। इसका दूसरा नाम क्या है? साकिन। बेटा तीसरा नाम क्या है इसका? सुकून है। अच्छा बेटा, जिस हर्फ के ऊपर यह आता है उसको क्या बोलते हैं? या के ऊपर आ गया या साकिन, मीम के ऊपर आ गया मीम साकिन, बा के ऊपर आ गया बा साकिन। अच्छा बेटा, इसमें हर्फों में हमजा भी है, हमजा भी है। अच्छा, हमजा के ऊपर आता है, क्या बोलेंगे बेटा उसको? हमजाए साकिना, उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमजाए साकिना। तो जहां पर ये आएगा हमजाए साकिना, वहां पर कैसा पढ़ेंगे बेटा उसको? उसको पढ़ेंगे उस्ताद जी झटका देकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? झटका देकर उसको पढ़ेंगे। व मुर, क्या पढ़ेंगे? व मुर शअनु यती। ऐसा बहुत सारी मिसालें हैं कायदे के अंदर भी। ये तख्ती नंबर 25 है। फिर इसी तरह आगे तख्ती नंबर 26 है। नूने उतनी जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? नूने उतनी, है ना? अब बच्चों को हम सबसे पहले उसकी शनाख्त कराएंगे, पहचान कराएंगे। बेटा ये क्या है? नून है। ये क्या है? नून है। और एक कभी कभी हर्फ के नीचे कहीं पर ऐसा छोटा सा नून लिखा हुआ रहता ना, ऐसा छोटा नून लिखा हुआ। उसका कायदा क्या है? कुरान करीम में बाल जगहों पर अलिफ के नीचे छोटा नून लिखा जाता है। इस छोटे नून को नूने उतनी कहते हैं। अलिफ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? ऐसा बहुत सारे मकामात पर कुरान करीम के अंदर यह अल्फाज लिखा जाता है। और यह हमजा वस्ल जहां रहता है, अक्सर वहां पर ऐसे मकाम पर यह नूने कुतनी आता है लिखने में। अब मिसाल के तौर पर अब क्या है ये? क़दीरुनिल्लज़ी। क्या है ये? क़दीरुनिल्लज़ी। यहां पर असल में क़दीरुन, इसके ऊपर दो पेश की तनवीन, लेकिन उसको पढ़ने में परेशानी होगी तो इसके नीचे क्या लिख दिया? अलिफ के छोटा सा नून है। ये मिलाकर पढ़ने में ये हमजा जो अलिफ लिखा है बेटा, ये इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्या कर देंगे इसको बेटा? हाँ, जो नून है छोटा सा, ये इसको लाम से मिलाएंगे। फिर आप उन तस्जीद वाला कायदा पढ़ाए रहते, और तस्जीद वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाते। किससे मिलाते? नून लाम जेर निल, क़दीरुनिल, लाम ज़बर ला, क़दीरुनिल। क्या बेटा बेटा ये किससे मिला हमको? नून को। अली पढ़े बेटा? नहीं पढ़े। फिर क्या पढ़े? आप उन नून को पढ़े। किसको पढ़े? यही छोटा सा नून है, इसको अलिफ को छोड़ेंगे और नून को बाद वाले हर्फ से मिलाकर
पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं नूने उतनी। क्या बोलते इसको? अगर बेटा अभी कभी कभी ऐसा होता बच्चों को पूछेंगे हिज्जे करा के, बेटा क्या है ये? अब बच्चों को कुछ हिज्जाते भी हैं, किसी को उर्दू पढ़ना आता है, हर तरह के जहन के बच्चे रहते हैं, तो बच्चे क्या बताएंगे? लू माजा तीनी लजी। क्या है बेटा ये? लू माजा तीनी लजी। लेकिन बेटा यहां पर आयत है, यहां पर क्या है? आयत है। अब इसको नून को हम पढ़ना नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? अब बच्चे कंफ्यूज होते, अब पढ़े तो पढ़े, क्या पढ़े? क्या करेंगे? लू माजा तीन लजी है, लेकिन यहां पर आयत है, तब इसको क्या करेंगे हम? बेटा इसको हम साकिन कर देंगे, हाय साकिना कर देंगे, यहां पर आयत लगाएंगे लू माजा। अब ये नून पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे और अलिफ पर आरजी तौर पर जबर लगाकर पढ़ेंगे अल्लज़ी। क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ी जमा मालू वाददा। लू माजा अल्लज़ी जमा मालू। इस तरह बच्चों को हमको समझाना है, पढ़ाना है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।